Hello student, today we will continue our chapter second atomic structure और इसमें आज हम पढ़ेंगे the most important topic electromagnetic radiation. To learn the structure of the atom, first of all you have to learn what is electromagnetic radiation. After this we will study the structure of the atom. The structure of the atom नील बोर ने अचानक ही नहीं खोज दिया कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट गड़बड़ हुआ और उन्होंने इसके स्ट्रक्चर खोज दिया. इस स्ट्रक्चर को खोजने के पहले कई थ्योरीज दी गई, कई चीजें खोजी गई और उसके बाद पता चला कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. मतलब जो मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो आपने 9th में पढ़ा कि एटम इज जस्ट लाइक अ कंसेंट्रिक रिंग. एक के शेल है, एल शेल है, उससे बहुत ही अलग है एटम का स्ट्रक्चर. तो उसको अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और इस चीजों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा. आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. So what is electromagnetic radiation? As you can see, this is combined of two words. Electro means electric field, magnetic means magnetic field. आपने 10th में पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर वाले चैप्टर में, जनरेटर और मोटर वाले चैप्टर में. So this electromagnetic radiation. There are different types of radiation and electromagnetic radiation उसमें भी एक तरीके की रेडिएशन है, राइट? ये इस रेडिएशन में क्या होता है, यहां पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि दो फील्ड हैं. एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड. दोनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, 90 डिग्री का एंगल है. इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन से मूव कर रही, प्रोपोगेट कर रही है आगे की तरफ. एंड यू कैन सी इन द फिगर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोगेटिंग ऑल्सो towards direction x, and the resultant is direction of propagation, that is you can see both the fields are propagating in different forms in a direction common direction, that is x. So both these fields contribute to form electromagnetic radiation. You can see here this is the electric field component and this is the magnetic field component. Both are moving like this, both are moving in different direction and they share a common path, that is in the direction x. Suppose this is electric field and this is magnetic field, and the particle is vibrating in both the direction and propagating in a common path, that is in the direction x, and this is called electromagnetic radiation. By the definition you can see, when an electrically charged particle like electron or anything, electrically charged particle oscillates. Oscillation means moving. You can see this is a pendulum and this pendulum oscillates from its mean position. Means it ये अपने पाथ को बार बार रिट्रेस करेगा after a certain interval of time, definite interval of time. So when an electrical charged particle oscillates, oscillating between electric and magnetic fields, changing electric and magnetic fields are produced which are right angle to each other. मतलब जब भी कोई पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे ऑक्सीलेट करेगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो कि राइट एंगल होंगी, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे इस तरीके से होंगी, which are right angle to each other. This mode of propagation is called wave. So 9th में आपने वेव थोड़ा सा पढ़ा है, यहाँ पर थोड़ा और पढ़ेंगे हम. This mode of propagation is called wave. The energy transferred in the form of oscillating electric and magnetic field is called electromagnetic radiation, right? So this transfer in the form of oscillating electric and magnetic field is called electromagnetic radiation, right? इसकी एक खास बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी एक खास बात है. आपने 3 मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पढ़ा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कंडक्शन केवल सॉलिड में होता है जहां पे पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, जैसे कि ये एक मेटल रॉड है, इस पार्ट को अगर हम हीट करेंगे तो थोड़ी देर में ये वाला पार्ट गर्म हो जाएगा. दिस इज कंडक्शन. कन्वेक्शन, गर्म हवा हीट को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लेके जा रही है. लेकिन रेडिएशन में देयर इज नो मीडियम इज रिक्वायर्ड. इसके पहले कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में मीडियम रिक्वायर्ड था, लेकिन रेडिएशन में मीडियम रिक्वायर नहीं होता है. इसका मतलब ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है. जैसे सनरेज हैं, दे आर रेडिएशन, सनरेज आर रेडिएशन, और सनरेज
स्पेस में से जहां पे वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, वहां से ट्रेवल होते हुए हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती हैं, उन्हें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो सन रेज आर ऑल्सो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन विच नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, राइट. And the speed of this electromagnetic radiation is equal to the speed of light, that is 3 into 10⁸ meter per second, right. So this is all about electromagnetic radiation. आपको उम्मीद है समझ में आया होगा. फिर से एक बार समझाता हूं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो पार्टिकल होता है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है. जो पार्टिकल होता है वो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक बार मैग्नेटिक फील्ड में, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक बार मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेट करता है. और इस वाइब्रेशन से जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, एक्चुअली पार्टिकल के वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. पार्टिकल दोनों फील्ड में वाइब्रेट करता है और ये आगे की तरफ बढ़ता है. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट. और इस खास बात यह है, इसमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और जो स्पीड होती है वो होती है इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट. तो आपकी समझ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उम्मीद है आ गया होगा. कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप उसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इतना भी आसान टॉपिक शायद नहीं है, राइट. दूसरा अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा वेव के बारे में, क्योंकि ये चीजें अभी आगे जब हम एटम का स्ट्रक्चर में विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, दिस थिंग्स विल कम, एंड इफ दिस थिंग्स विल नॉट बी क्लियर टू यू, देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन योर माइंड, राइट. तो सबसे पहले हम जरा कुछ चीजों को यहाँ पे क्लियर करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव. वेव की दो कैरेक्टरिस्टिक होती है जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती हैं. वन इज वेवलेंथ एंड अदर इज फ्रीक्वेंसी. आपने 9 में पढ़ा है, फिर भी मैं इसे रिवाइज करा रहा हूं. सपोज ये एक वेव है, ये एक वेव है. आपने 9 में पढ़ा था, इसे क्रेस्ट बोलते हैं, इसे ट्रफ बोलते हैं. जो डाउन पार्ट है इसे ट्रफ बोलते हैं, इसे क्रेस्ट बोलते हैं. खैर उसमें हम नहीं जाएंगे. ये वेव का ओरिजिनेटिंग पॉइंट है पॉइंट 0. यहां से वेव ओरिजिनेट हुई और आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रही है. इस एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक का जो पॉइंट है, मतलब वेव इतने में जितनी दूरी चढ़ी, उसको हम कहते हैं वेव की वेवलेंथ. मतलब वेव जो एक ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस कर रहा है, एक कंप्लीट दूरी जो तय कर रहा है. देखिए आधा यहां पर, एक पूरा यहां पर और फिर आधा यहां पे, ये जो दूरी है इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ. या फिर हम इस पॉइंट को यहां से यहां तक भी ले सकते हैं. इस दूरी को हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ. मतलब वेव के द्वारा चली गई दूरी हम कहते हैं उसको वेवलेंथ, राइट. सेकेंड प्रॉपर्टी, और इसकी यूनिट होती है मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम. छोटी से लेके बड़े तक इसकी यूनिट होती है. मतलब दूरी की जो भी यूनिट है, मीटर, एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर, जिसमें भी हम इसे डिनोट करना चाहें हम इसे डिनोट कर सकते हैं. सेकंड थिंग इज फ्रीक्वेंसी. दिस फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय म्यू. दिस फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय म्यू. अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द वेव रिपीट्स इटसेल्फ पर सेकेंड. मतलब एक सेकेंड में वेव कितनी बार अपने आप को रिपीट कर रही है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज. इसको मैं और थोड़ा क्लियर करके भी समझाता हूं. देखिए ये एक कंप्लीट वेव हुई और ये कंप्लीट वेव हुई, ठीक है. सपोज करिए यहां से यहां तक इसको चलने में 1 सेकंड का समय लगा है, इसका 1 सेकंड का समय लगा है. तो यहां से यहां तक की वेव कितनी हो गई? एक वेव हो गई ये, एक वेव हो गई ये, और एक वेव हो गई यहां से यहां तक, ये दूसरी वेव हो गई, राइट. 2 वेव, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2, राइट. इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2, क्योंकि 1 सेकंड में वेव ने अपने आप को 2 बार रिपीट किया है. सिमिलर फिगर हम इधर ड्रॉ करते हैं और देखिए सपोज दूसरी कोई वेव है, वो इतनी ही दूरी चली, लेकिन इसमें वो कितनी बार चली? 3 बार. इतनी ही दूरी ये 3 बार चली, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3, राइट. इसमें 3 वेव प्रोड्यूस हुई, तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी 3. वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है. अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा, देखिए यहां पे वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगा. देखिए इसकी दूरी इसके हिसाब से कम है, राइट. सो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वेव के. और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो हर्ट्ज में आती है, और इसका जो फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. ये इसका रिलेशन है, इससे हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं. C is equal to mu into lambda. Lambda is the unit of wavelength. We denote wavelength by lambda and we denote frequency by mu. So C is equal to
mu lambda. So these are the two important characteristic of wave. Now third is wave number. वेव नंबर ये भी आपके आगे आएगा, तो इसको भी जरा समझते हैं क्या है. वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ. नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ मतलब हमने लेंथ को डिनोट कर दिया है, इसमें कितने वेव आ रहे हैं, दिस इज नोन एज वेवलेंथ. सपोज इसमें कितने वेव आए, 1 2 3 3.5, और अगर हम इसको कंटिन्यू करें, इसमें कितने वेव आए, इसमें आए एक 1.5, you can see 1.5. So this is wave number, एक लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव्स आ रहे हैं. थर्ड इज पीरियड और ऑल्सो कॉल्ड टाइम पीरियड. वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं न्यू बार, दिस इज नोन एज न्यू एंड बार. सो वेव नंबर इज डिनोटेड बाय न्यू बार, राइट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज period or time period. This is denoted by capital T, also called time period. So what is time period? Time period is the time interval after which a wave repeats itself, right? It is the time interval after which a wave repeats itself. Suppose वेव ने यहां से यहां तक जाने में 1.5 सेकेंड लिया, तो इस वेव का, और फिर ये आगे कंटिन्यू हुआ, फिर इसने कितना टाइम लिया 1.5, तो इसका टाइम इंटरवल क्या होगा 1.5. सपोज दूसरी वेव है जो यहां से यहां तक जाने में ले रही है 2 सेकेंड, और फिर यहां से यहां तक जाने में ले रही है 2 सेकेंड, तो इसका टाइम इंटरवल क्या हुआ 2 सेकेंड. सो टाइम पीरियड इज द टाइम इंटरवल आफ्टर विच अ वेव रिपीट्स इटसेल्फ. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज एम्पलीट्यूड. बट इसको बहुत कायदे से समझिएगा, क्योंकि आगे अभी जो 3 फिनोमेना हम पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक प्रॉपर्टी और है, तो जब अभी हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें हम एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा, जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें ये टर्म्स बहुत ही ज्यादा मायने रखेंगे. एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड बहुत मायने रखने वाला है. एम्पलीट्यूड क्या होता है, जरा हम पढ़ें एम्पलीट्यूड क्या होता है. एम्पलीट्यूड जैसा कि मैंने यहां लिख रखा है, हाइट ऑफ द मैक्सिमा ऑफ द वेव. Height of the maxima of the wave. It determines the intensity of the radiation. इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से. जरा हम इसको पढ़ें, ये क्या होता क्या है. देखिए, मैं यहां पे एक वेव ड्रॉ कर रहा हूं, मैं यहां 2 वेव ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है. जरा ध्यान दीजिएगा, इस लाइन पे जरा आप ध्यान दीजिए, इस लाइन पे ध्यान दीजिए. एक वेव है जो ऐसे चल रही है, जो इस लाइन को टच कर रही है, राइट, इस लाइन को टच कर रही है. दूसरी वेव है जो इस लाइन को टच कर रही है. इसका वेव कर्व मैंने बड़ा बनाया है. देखिए, ये जो हाइट है, सपोज ये 1 सेंटीमीटर है और ये है 2 सेंटीमीटर. ये जो आप देख रहे हैं मैक्सिमम पॉइंट, जैसे ये जो कर्व है, इसका जो ये आप मैक्सिमम पॉइंट देख रहे हैं, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड. मतलब वेव कितना ऊपर तक जा रही है, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड. एनर्जी जो है वेव की, वो एम्पलीट्यूड से पता चलता है कि वेव में कितनी ज्यादा एनर्जी है, राइट. जैसे इस वेव की एनर्जी, सपोज ये वेव ए है, ये वेव बी है, तो एनर्जी ऑफ वेव ए विल बी लेस देन एनर्जी ऑफ वेव बी, राइट. एनर्जी ऑफ वेव वी, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है और इसका एम्पलीट्यूड कम है. एक चीज आप दिमाग में रखिए, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस होता है. फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस होता है, जरा इस टॉपिक को आप क्लियर करके रखिए. एम्पलीट्यूड जो है वो इंटेंसिटी को डिफाइन करता है. एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी. फ्रीक्वेंसी है कितनी वेव्स हिट कर रही हैं, और इंटेंसिटी है कितना एम्पलीट्यूड है. मतलब इस वेव की एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इस वेव की एनर्जी कम होगी क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कम है. लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, सपोज इस वेव की एम्पलीट्यूड कम है लेकिन इसकी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, राइट. ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है. फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स per second generated per second, while intensity is the amplitude, it determines the amplitude. ये दो चीज आप अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में डिफरेंस क्या है. फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स हिटिंग
per second, while amplitude is the maximum of the curve and it determines the energy of the wave. मतलब जिसकी intensity ज्यादा उसकी energy ज्यादा, right? So आज हमने वेव के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ा, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर करके रखिए, क्योंकि आने वाली जो 3 फिनोमेना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एड्सॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा, इसको जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इन चीजों का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, और आपकी नॉलेज इसको लेकर के बहुत ही साउंड होनी चाहिए, और खासकर ये फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, ये आपको बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, राइट? इसमें आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन नो डाउट होगा जरूर कंफ्यूजन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई प्रॉब्लम हो मेरे से पूछिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा, और इसको पढ़ के रखिए ताकि आगे के लेक्चर में जब मैं आपको एटम का स्ट्रक्चर पढ़ाऊं, हम धीरे धीरे एटम के स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ें, तो वहां पर आपको परेशानी ना हो, अदरवाइज ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, राइट? और मेरे चैनल के पास वहां पे एक सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप मेरा नया वीडियो देख सकें। और तब तक पढ़ते रहिए, जो डाउट हो मेरे से पूछिए, आगे हम फर्दर विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।